Hello students, hope you're having an amazing day. In the previous class we had discussed about some preliminary information about acids and bases, what are acids and what are bases, and how to identify them using certain indicators. So now we will move into the chemical properties, that is the chemical reactions of acids and bases. So before going to the chemical properties of acids and bases, we should keep in mind certain things to carry out the chemical reactions that I will tell you one by one. You observe it very carefully. So first, acids, say hydrochloric acid, say sulfuric acid, they dissolve in water. They make aqueous solution in water and dissociate into ions, opposite ions. Here sulfuric acid also dissociates into opposite ions, that is positive, that is a cation, and negative ion, that is anion. So see here, whether you take nitric acid also, HNO3, these are all acids. They dissolve in water. Nitric acid produces H plus and NO3 minus ion. Say acetic acid, CH3 COOH, that dissociates to produce H plus and CH3COO minus acetate ion. So in this way, all the acids this dissociate into positive ions and negative. The positive ions, see, all the positive ions here are common, that is H plus ion. That's why in the beginning I told you that acids produce H plus ions in aqueous solution, and that gives the characteristic reaction of acids. What I mean to say is, this H plus ion is responsible for the characteristic reaction of acids. Acid ro jette bi reactions hobo sabu jako pai basically dayi hobo ei jo H plus ion ta. Similarly, bases also dissolve in water, like sodium hydroxide. It dissolves in water. All of them, they dissolve in water. Sodium hydroxide dissolves in water and it also dissociates into opposite ions, H plus and OH minus ion. Sorry, Na plus and OH minus ion. Take potassium hydroxide, that also dissociates into K plus OH minus ion. Only in aqueous solution. You take calcium hydroxide, you take ammonium hydroxide, it dissociates into opposite ions. And look closely, all the negative ions, they are all the same, that is the hydroxide ions, OH minus ions. So in this way they dissolve in water and produce opposite ions. And look closely, all the negative ions in case of bases are same, that is the hydroxyl ion or hydroxide ion. This is called hydroxide ion or hydroxyl ion, also it is called hydroxyl ion. Bases, they have their characteristic reaction because of this OH minus ion, that is the hydroxide ion, and acids, they have their characteristic reactions because of this H plus ions. So one important thing I want to tell you, that all the reactions we will carry out in solution phase, in aqueous solution state, that is in dissolved state. So acids, obviously they are dissolved in water to produce their aqueous solution. So there are a set of bases that will dissolve in water and they have got a special name. All the bases will not be dissolved in water. Only those bases which will dissolve in water, they have got a special name, that is called alkali. I'm going to erase this, quickly note it down or take a screenshot of this. Alkali, ALKALI, or alkalis also you can write, plural. Alkalis, the bases which are soluble in water, soluble bases are called alkalis.
or you can write the bases which are soluble in water are called alkalis. There are certain bases like copper oxide, iron oxide, aluminum oxide. They are also basic in nature, but they do not dissolve in water. Hence, they cannot be called as alkalis. So, alkalis which are soluble in water, and the examples are sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide. These are all soluble bases, and hence they are called alkalis. And one more thing, we categorized acids into strong acids and weak acids, bases also, strong bases and weak bases. So on what basis they are named so, or they are classified so, I'm going to tell you that strong acids, see, when I take NaOH, when I put it into water, it dissolves and produces Na plus and OH minus ions. If all the sodium hydroxide that I put in water dissociated to give these two opposite ions, then that is called a strong base. ओडिया रे कहूँ तुमको जे कोनोसी बेस जदि संपूर्ण भाव में डिसोसिएट है आयनाइज है, फॉर एग्जांपल मन कर मु 100टा सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं नंबर गणिली, मन कर 100टा सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं 100 रु 90 जन कि 95 कि 99 जन मनकर डिसोसिएट हो गले, भांगी गले Na प्लस आउ OH माइनस आयन को, ताले तार जो मात्रा केते मात्रा रे सी डिसोसिएट है, बहुत मात्रा रे डिसोसिएट है, सो जो माने अधिका मात्रा रे एमिति डिसोसिएट होंती समान को कहा जाए strong bases. See, sorry, I have written here strong acid, I have written strong base. Example, the example is strong base. After that I will discuss strong acids and weak acids. So we are discussing strong bases. So this is a base if it is completely ionized or nearly completely ionized, that are called strong bases. जे कौन से बेस जे कि संपूर्ण भाव में आयनाइज हुए, आयनाइज मैंने कौन एमती पानी रे डिजोल्व होइकी दी प्रकार आयन से दउथबो, ताले से भलिया बेस को हमें कहबा स्ट्रांग बेस. सेमिति स्ट्रांग एसिड भी से समान जिंस, स्ट्रांग एसिड मनकर HCl ये डिजोल्व हला पानी रे H प्लस आउ Cl माइनस, से समान जिंस मु मनकर 100टा HCl नहीं 100 रु 100 जन जाक नले 95 कि 98 जन भांगी गले डिसोसिएट हो गले एमती ऑपोजिट आयन को, ताले समान को हमें कहबा स्ट्रांग एसिड्स. So they undergo complete ionization. Strong acids or weak acids, they undergo complete ionization. Ionization माने कौन एमती दी प्रकार आयन से माने प्रोड्यूस कले, और आमे आउट ए वर्ड भी यूज कर परिया. They undergo complete dissociation. Dissociation माने भांगी जिबाटा. Dissociation गोटे मॉलिक्यूल थिला से भांगी करी ऑपोजिट आयन तैयारी कला कोथरे ना पानी रे पकेबारो एक्वस सॉल्यूशन रे ही ए जिंसटा हुए. सेमिति वीक बेस आ वीक एसिड केस रे ए जिंसटा हुए ने. वीक बेस जेमिति कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड हे गला, एमान को जदि पानी रे पकेबा माने पार्शियल आयनाइजेशन होंती, NH4 प्लस एंड OH माइनस आयन देले, बेस से माने OH माइनस आयन प्रोड्यूस करबे. सो मन कर 100टा पकईची, 100टा मॉलिक्यूल पकईची, ता देहरु मन कर 20टा कि 10टा कि 5टा खूब कम परिमाण रे से माने आयनाइजेशन हेले बाबा एमिति भांगी गले ऑपोजिट आयन को. तो सेमिति आ बेस को हमें कहबा वीक बेस. सेमिति एसिड केस रे भी से समान जिंस वीक एसिड लाइक CH3COH जोटा कि एसिटिक एसिड, सी जदि भांगिबो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, से माने ऑब्वियसली H प्लस प्रोड्यूस करबे जदि एसिड, बेस कहले सी OH माइनस प्रोड्यूस कर परथो. सो ये जो वीक एसिड और वीक बेस एमाने संपूर्ण भाव में आयनाइज होंतनी, एमाने पार्शियल आयनाइजेशन होंती. पार्शियल माने कोन आंशिक भाव में, आम 100टा पकईथिले 100 म खाली माने बुझिया पई कहछि, किंतु एक्जाक्टली 100 न बहुत परिमाण रे से नंबर रे थाए, किंतु मु बुझिया पई कहछि जदि 100टा आम पकईछे ता देहरु खूब कम परिमाण रे, जेमति कि 100 रु 10टा कि 15टा कि
20 कि 5टा एमती खूब कम परिमाण जदि से डिसोसिएट हेले 100 रु 5 जन डिसोसिएट हेले 5 जन आउ डिसोसिएट हेले से कहवा आम partial dissociation or partial ionization. So weak bases and weak acids they undergo partial ionization और partial dissociation भी हमें लिखी परबे. So इटा होची strong acid और weak bases रो exact definition काहे कि हमन को हमें strong base और weak base बोली कि खोजे. So पर आउथरे देखिए strong base और weak bases को मापिबा पई weak base को मापिबा पई कोन माप को यूज करा जाए सेटा हमें देखिए पर ए क्लास रे. So let us move into the characteristic reactions of acids and bases. Note this one. এটা बहुत समय एग्जाम रे भी आसे जे अल्काली कोन तार एग्जांपल दियो. What is alkali? Give some examples, 1 or 2 examples of alkali. एटा को तुम लिखियो. नेक्स्ट एसिड और बेस रो रिएक्शन को जिबा पूर्व गोटे इंपोर्टेंट जिनस मु प्रथम भी कही क्लास आरंभ भी जे एसिड आउ बेस माने परस्पर को न्यूट्रलाइज करते परस्पर को माने कैंसल करते निज निजर माने परस्पर रो इफेक्ट को जदि पेटर एसिडिटी हो जाइए ताले आमे गोटे वीक बेस खाइबा वीक बेस कंज्यूम कले से पेटर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करियो. सो एसिड और बेस परस्पर को न्यूट्रलाइज कले एक्जाक्टली कौन हुए एसिड प्लस बेस ये कौन तैयारी करे न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट आउ वाटर तैयारी करते. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एटा को ही कहा जाए न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन एतिके हम मन रे थाउ जे एसिड जदि बेस सहित रिएक्ट कला किंबा बेस जदि एसिड सहित रिएक्ट कला ताहले सॉल्ट आउ वाटर से माने तैयारी करिवे. आ ए जो रिएक्शन को कहा जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ए रिएक्शन को कहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो गोटे गोटे करके आम देखा एसिड आउ बेस रिएक्शन. प्रथम एसिड रो रिएक्शंस देखा रिएक्शंस ऑफ एसिड्स रिएक्शंस ऑफ एसिड प्रथम विथ मेटल. हाउ डज एन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल. गोटे मेटल सहित एसिड रिएक्ट कले कौन हम. सो देख एसिड कहले जेनेराली तुमको जिते बड़े भी एसिड रिएक्शन करिया को कहबो तुम रैंडमली पिक करियो सब बेले HCl को सहज हम लिखापी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड किंबा जो मैंने लिखिपर सल्फ्यूरिक एसिड जोटा कि फॉर्मूला H2SO4 आपको भी तुमने पिक कर पारिबो. सो यूजुअली तुमने चूज कर HCl को जदि देइथिबो HCl के H2SO मेंशन करथिबो ताहले ताको ही लिखिबो. जदि खाली एसिड कहिथिबो आमे रैंडमली चूज करबे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को. सो सपोज आमे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो रिएक्शन करेबा गोटे मेटल सहित मेटल मन कर मु नेली जिंक एसिड नेली हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो प्रथमे तार डेफिनेशन लिखिबा एसिड्स रिएक्ट विथ metals to form salt and hydrogen gas. Hydrogen gas. Acid plus metal gives salt plus हाइड्रोजन. आपको एमती बॉक्स करके रखियो सो दैट तुमको जिते बड़े भी देखियो एथरे नजरटा पड़ो. सो एसिड हिसाब से आम ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मेटल नेले मनकर जिंक आउरी अनेक प्रकार मेटल अच्छे आयरन अच्छी सोडियम अच्छी मैग्नेशियम अच्छी पर आम सोडियम मैग्नेशियम आम को चूज करें कहीं मैंने हाईली रिएक्टिव सोडियम पोटासियम जदि आम पकेबा आधार ताले सांगे सांगे निया लगे एत जोर से रिएक्टिव. सो आम जिंक चूज कले जिंक मेटल सहित हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जदि रिएक्शन कराऊे ताहले ये कौन दबा गोटे सॉल्ट सेटा होची जिंक क्लोराइड. जिंक क्लोराइड रो फॉर्मूला हला ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस कहले H2. रिएक्शन तो बैलेंस नहीं जेहेतु दीटा क्लोरीन अच्छी आम आपको 2HCl करवा. सो 2HCl कलू दीटा क्लोरीन बैलेंस होगा किंतु एपटे 2 मल्टीप्लाई कलू दीटा हाइड्रोजन भी होगा. सो एपटे H2 अच्छी ऑलरेडी बैलेंस्ड. सो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर एसिड
HCl with zinc metal आम सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं पार H2SO4 प्लस मनकर मु मैग्नीशियम सहित रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम इज ऑल्सो ए मेटल सो ये कौन तैयार करेंगे सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस सो ये जो हाइड्रोजन गैसटा रिलीज है माने गैसटा सीधा एटमॉस्फेयर को सी एस्केप करियो सो आम जानिबा केमिति एठी हाइड्रोजन गैसटा रिलीज है कहिके हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट hydrogen gas has been evolved in this reaction so to identify the gas evolved we will carry out an experiment गोटे एक्सपेरिमेंट आम क्यारी करवा सो दैट आम जापर जे ये एक्जाक्टली को गैसटा रिलीज होगा आम चिन्हवा ये को गैस रिलीज है सो ताप एक्सपेरिमेंटल सेटअप होची आम कौन करवा गोटे टेस्ट ट्यूब देहरे किछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छा पुणी डाइल्यूट DILUT डाइल्यूट एसिड माने कौन ता देहरे अधिका मात्रा रे पानी मिसी थिवो कम एसिड थी अधिक मात्रा रे पानी मिसी थी जब आम स्ट्रंग एसिड नवा ताले विगरस रिएक्शन हम वायलेंट रिएक्शन हाँ सो से आम डाइल्यूट एसिड नवाटा सेफ सो डाइल्यूट एसिड नेले आधार किसी HCl ताकू गोटे क्लैंप रे आमे क्लैंप स्टैंड रे ताकू रखिले क्लैंप स्टैंड देन आर जो माउथ को ताकू गोटे एयर टाइट कॉर्क जहाँ गोटे होल थी एक जो कॉर्क आधारे होल भी थी सेमती कॉर्क ता देहरे देकी ताकू एयर टाइट करके रखिले सो ता पूर्वर ए कॉर्क देवा पूर्वर कौन करा जीवो ना एसिड देहरे गोटे छोटो जिंक मेटालटे इंट्रोड्यूस करा जीवो जिंक मेटल ए जो कॉर्क देवा पूर्वर ये जिंक मेटल आसला सो जिंक रिएक्शन कला हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित जमती कि आम रिएक्शन देखले जिंक प्लस HCl से देला ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस सो ये हाइड्रोजन गैस छोटो छोटो बबल्स लिबरेट हम ये तो देखा जीवन ऊपर एक्जाक्टली जिंक रो ऊपर सब छोटो छोटो ब्लिस्टर्स छोटो छोटो फुटका ता देहरे लागिकी थी सो से गैसटा रिलीज हम रिलीज है आमको आखि की देखा जीवन सो ताकू कॉर्क रे बंद कले कॉर्कटार छोटो छिद्रटे थी जो थे आम गोटे ग्लास ट्यूबटे पुरेबा सो ग्लास ट्यूब ताकू लीड करके नहीं कि गोटे साबुन पानी सॉल्यूशन गोटे कंटेनर रे निया थी सोप सॉल्यूशन एथरे कौन थी सोप सॉल्यूशन सो सोप सॉल्यूशन देहरे यही जो ट्यूब टाकू लीड करके आ भितर इंट्रोड्यूस करवा सो एठू जो गैसटा रिलीज होइथो से भी यही जो ग्लास ट्यूब देहरे आसिकी साबुन पानी देहरे पशियो साबुन पानी देहरे गैसटा पशला पर से रिलीज होबो को ट्राई करियो रिलीज हला बेलू सी गोटे छोटो छोटो फटका सब पानी फटका ता देहरु बाहर के आसो से पानी से जो सॉल्यूशन सब सॉल्यूशन रो बबल्स पाखु को आम जदि बर्निंग कैंडल गोटे नबा कैंडलटा जलुथो ता पाखु को नेले ए जो फटकाटा सांगे सांगे फुटियो फुटियो माने कोन इट बर्न्स with a pop sound you know how a blister or water bubble bursts with a pop sound से जब फाटियो से गोटे पॉप साउंड हम जेहेतु आधार हाइड्रोजन गैस अच्छी एंड हाइड्रोजन गैस इज हाईली इनफ्लेमेबल निजे जलिज निया को सी खूब शीघ्र क्षिप्र गति कैच कर बर्निंग कैंडल पाखक नाला बेलू से बबलटा फाटी जाए फाटिला बेलू गोटे पॉप साउंड आसो सो आम जाना जे आदेहरे हाइड्रोजन गैस अच्छी सो ये रिएक्शन रु एटा कन्फर्म करे जे जो गैसटा रिलीज है से गैस होची हाइड्रोजन गैस सो दिस इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस स्टैंडर्ड टेस्ट ये टेस्ट करके आम जानीदे जे ये गैसटा कौन हाइड्रोजन गैस इज हाईली इनफ्लेमेबल सो the bubbles containing hydrogen gas coming out of the soap solution bursts or burns बोली कहवा से जली जाए फाटी जाए with a pop sound bursts or burns with a pop sound so बेले बेले एग्जाम रे पचारे हाँ how do you know that the gas evolved as hydrogen gas or how do you identify the gas released so you have to write that when
that gas released from this reaction is bubbled into a soap solution, and the bubbles coming out of that soap solution burn with a pop sound, and that's how we identify the gas as hydrogen gas. So ये गला तार एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन गैस को चिन्हिबा पाई. सो एला प्रथम रिएक्शन जो थे एसिड रिएक्ट कला मेटल सहित कौन आसला सॉल्ट आउ हाइड्रोजन गैस. सेमिति सेकेंड रे एसिड with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, metal carbonates and metal hydrogen carbonates. 9th क्लास रे हमें फॉर्मूला लिखियो शिखीचे सोडियम कार्बोनेट पोटासियम कार्बोनेट नले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एमाने हेगले सब मेटल कार्बोनेट आउ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो आ सहित रिएक्शन कले कौन आसीबो the acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates producing salt, water and carbon dioxide gas. Acid plus metal carbonate ये कौन दबो salt plus water plus carbon डाइऑक्साइड गैस दब. सो एसिड पुणी थोड़ा आम पिक करुचे सिंपल एसिड HCl प्लस मेटल कार्बोनेट पे आम चूज कले सोडियम कार्बोनेट को. आम कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं पार. सोडियम कार्बोनेट ये कौन दब सॉल्ट NaCl प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. आपको बैलेंस कले दीटा सोडियम अच्छी सो ये 2 NaCl आसो. सो ये 2 मल्टीप्लाई कर दीटा क्लोरीन होगला. सो ये गोटे क्लोरीन अच्छी आपको 2 मल्टीप्लाई कले. सो देखियो पूरा पूरी गणला को बैलेंस अच्छे केमिकल रिएक्शन. एगेन आउ गोटे नेले से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बर्तमान सल्फ्यूरिक एसिड ताकू समान ना आउ गोटे कार्बोनेट नवा मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्शियम कार्बोनेट आ सहित रिएक्शन करेले ये भी सॉल्ट दबो जोटा कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 देन वाटर देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस. देखो रिएक्शनटा पूरा पूरी बैलेंस अच्छे निजे चेक करियो. सो ये जो कैल्शियम कार्बोनेटा आ गोटे इंपोर्टेंट थिंग कैल्शियम कार्बोनेट एटा क्या देहरे थाए लाइमस्टोन चूर्ण पत्थर लाइमस्टोन मार्बल आम घर यूज करचे मार्बल देन एगशेल अंडार जो खोलपा अच्छी एगशेल चॉक ऑल्सो ब्लैकबोर्ड रे लिखापी जो चॉक यूज करा जाए चॉक पीस सी भी चूर्ण पत्थर ही आसता है. बस ये सबू जाकर कंपोजिशन होची कैल्शियम कार्बोनेट. अंडार खोलपा हो मार्बल हो कि चूर्ण पत्थर हो नले चॉक हो सबू क्षेत्र में कैल्शियम कार्बोनेट अच्छी. सो जहाँ भी नहीं कि आम गोटे एसिड सहित रिएक्शन करेंगे एमती प्रोडक्ट आसो सॉल्ट वाटर आउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो एगेन ये जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज है आम जाना केमी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज है तापाई भी गोटे एक्सपेरिमेंट करा जाए. गोटे स्टैंडर्ड टेस्ट अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड को बर्तमान देखिए से टेस्टा कौन. सो से भाया टेस्ट ट्यूब देहरे कौन करा जाए किछि मात्रा रे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट माने पुणी थर कहूँ जोटा कि पानी अधिक मात्रा मिसथिबो. सो सेमती डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेले ता देहरे देन आम कौन कले मेटल कार्बोनेट ता देहरे पकेले मनकर सोडियम कार्बोनेट पकेले सॉल्ट दबो जोटा कि डिजॉल्व होइकी रहइबो पानी रे वाटर सी भी पानी होइकी रहला. खाली गैसटा जो रिलीज है कार्बन डाइऑक्साइड सी ऊपर को उठो गैसटा ऑब्वियसली एस्केप करे. सो आम से सामान जिनस आम कॉर्कटे दबा कॉर्कटे आधार दबा एयर टाइट करिकी ता देहरे छिद्र थाए. सो लीडिंग ट्यूब आम दबा आधार. सो ग्लास ट्यूब लीड करिकी आम गोटे चैम्बर को नवा बा गोटे कंटेनर को नवा जाथे कौन थी लाइम वाटर ता देहरे थाए. सो लाइम वाटर देहरे जदि ये जो गैस को इंट्रोड्यूस करवा आम छाड़ा ता देह को
ताहले लाइम वाटरटा जो चूर्ण पानीटा क्लीयर सॉल्यूशन थाए सो तादरे जेतेबेले ए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसटा इंट्रोड्यूस करा जाए सेते बेलको से चूर्ण पानी धारे मिल्की व्हाइट कलर रो प्रेसिपिटेट आसे बस ये कलर चेंज हो जाए मिल्की व्हाइट को लाइम वाटर चेंजेस टू मिल्की व्हाइट क्षीर जमीती व्हाइट कलर सेमिति व्हाइट कलर को से सॉल्यूशन टा चेंज हो जाए सो कौन पाई से व्हाइट कलर को चेंज हला सो तादरे भी गोटे रिएक्शन टे हुए सो लाइम वाटर रो फॉर्मूला हला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 CaOH होची लाइम वाटर रो फॉर्मूला सो आधार कौन छाड़िले आमे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कले सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करिवारे से कैल्शियम कार्बोनेट आ वाटर को रिएक्शन दला से कन्वर्ट हला रिएक्शन की सो कैल्शियम कार्बोनेट चूर्ण पत्थर जोटा बा चक पीस आम देखीचे धला कलर सो धला कलर जोटा कि मिल्की व्हाइट से प्रेसिपिटेट तैयारी करे प्रेसिपिटेट माने कौन सी तले बसी जाए जमीती पानी रे कादुओ पकेले तले बसी जाए सेमिति जो कैल्शियम कार्बोनेट अच्छी ये भी प्रेसिपिटेट माने तले जमा हो जाए सो मिल्की व्हाइट कलर को चेंज हबार कारण होची फॉर्मेशन ऑफ दिस इनसोल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट माने होची जे तले जमा हो जाए जो माने को माने तले जमा हो जाए जो माने पानी रे डिसॉल्व हेबेनी इनसोल्युबल सब्सटेंसेस दे मेक प्रेसिपिटेट मन रखिता ए सब एग्जाम रे आसीओ so insoluble substances they make precipitate and calcium carbonate being insoluble in water that makes the precipitate and that color is milky white out important jinso ए जो मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयारी हला आदर जदि हम एक्सेस आउरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कले ताले से मिल्कीनेसटा डिसअपियर कर जिवो कोन पे डिसअपियर कर जिवो देखो कैल्शियम कार्बोनेट ये मिल्की कलर हिची मिल्की व्हाइट आदर हम आउरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कले से वाटर सॉल्यूशन रे ताले ये कौन तैयारी करे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 रो होल 2 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए सॉल्युबल सब्सटेंस ये पानी रे डिसॉल्व हो जाए पानी रे डिसॉल्व हबा जगो ये जो मिल्की व्हाइट कलर रो प्रेसिपिटेट देथिला से पुणी थरे डिसअपियर करि जाए मन रखियो भलो भाबरे एटा बारंबार एग्जाम रे आसे जे लाइम वाटर देरे कैल्शियम कार्बोनेट पुरैले छाड़िले से मिल्की व्हाइट कलर को चेंज हबो due to formation of this calcium carbonate and excess of carbon dioxide gas when passed through that solution then milkiness disappears due to the formation of soluble calcium hydrogen carbonate ako bhalo bhavre suno tha ako note भी करियो जे कोन पाए so this is a standard test for carbon dioxide gas ए जो टेस्ट टा लाइम वाटर देहरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंट्रोड्यूस करवा ये होची कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई करिवार ये स्टैंडर्ड टेस्ट दी नंबर गला कैल्शियम सॉरी एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित भी से समान जिनस आसियो एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट समान सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिड अगेन आम HCl नेले मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पाई NaHCO3 सो NaHCO3 मेटल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सॉल्ट दबो NaCl आर NaCl हेगला देन H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगेन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज है आपको आइडेंटिफाई करने से समान टेस्ट पास द गैस थ्रू लाइम वाटर इफ इट टर्न्स टू मिल्की व्हाइट देन द गैस रिलीज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ताको नहीं कि और भी क्वेश्चन आसे जदि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा जाए ताले कौन चेंजेस आसियो मैंने जानी ऑलरेडी मिल्कीनेस विल डिसअपियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट So this is the second reaction of acids with metal hydrogen carbonate and metal carbonates. Next, the third one is acid reaction of acid with metal oxides. Metal oxides. Same, acids will react with metal oxides to form
salt and water. एसिड मेटल ऑक्साइड सहित रिएक्शन कले सॉल्ट और वाटर तैयारी करिवो देखिबा केमिति होची सो एसिड सपोज HCl बहुत नेले वर्तमान H2SO4 नै गले सल्फ्यूरिक एसिड नेले देन मेटल ऑक्साइड हिसाब रे हमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड नेले सो ये कौन तैयारी करिवो सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर H2O दबो और आम HCl जदि नेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोटे मेटल ऑक्साइड नेले कॉपर ऑक्साइड देखो कॉपर ऑक्साइड गोटे मेटल ऑक्साइड जे कि पानी रे सॉल्युबल हुए नहीं इट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस सो आपको आम अल्काली कहि परिबे नहीं सो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसिंग कॉपर क्लोराइड फॉर्मूला CuCl2 प्लस वाटर सो ये दुटा क्लोरीन अच्छी बैलेंस करने आपको 2 मल्टीप्लाई कले देखिए पूरा पूरी बैलेंस हो गला सो इन दिस वे मेटल ऑक्साइड्स और acids react with metal oxides forming salt and water so salt और water आसला माने एदिटा न्यूट्रल प्रोडक्ट आसला ए रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन सो जदि एसिड टे मेटल ऑक्साइड सहित रिएक्शन करिकरी सॉल्ट और वाटर दोची जोटा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ताहले ए जो मेटल ऑक्साइड्स दिस आर बेसिक इन नेचर सेमती आप पूर्व रिएक्शन तो देखिले एसिड रिएक्शन कला मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड देला सो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेसिक इन नेचर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर metal carbonates and metal hydrogen carbonates are also basic in nature. Fourth one is acids with alkalis. Alkali माने water soluble bases. So acid plus alkali से समान जिनस salt और water आसियो. Acid plus alkali will produce salt and water. एसिड और अल्काली रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर से मैंने प्रोड्यूस कले सो एसिड नहीं गले HCl अल्काली नेले सोडियम हाइड्रोक्साइड सब जाक पानी रे सॉल्यूशन रे निया हिथिबो एक्वस सॉल्यूशन सो इट विल प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर सो इन दिस वे एसिड्स एंड alkalis react to give salt and water. This reaction is called neutralization. So these are the characteristic reactions of acids with different substances like metals, metal oxides, metal carbonates, metal hydrogen carbonates and alkalis. So सब जाक केस रे हमें रिएक्शन करके कौन कौन प्रोडक्ट आसियो से हमें देखिले आउ जो गैस रिलीज हला ताकू चिन्हिबा पय कौन एक्सपेरिमेंट कर दे केमिति चिन्हिबा हमें हाउ टू आइडेंटिफाई द गैसेस रिलीज्ड we carried the experiments you got to remember them next